Good evening, students. Up to now, we completed problems 13 in exercise 9.3. Right? Now, we are going to complete the remaining problems, whatever left over. Right? What is the question number 14? Three fair coins are tossed. What is the probability of getting three heads given that at least two coins show heads? Right? Three coins are tossed. Then what is the probability of getting three heads given that at least two coins show heads? ठीक है? Three fair coins are tossed means what is the sample space? एक एक काइन को two outcomes होता है, that is head and tail. Three coins means two cube, that is 8 events will be there in sample space. Now, what is the condition? Probability of getting three heads given that at least two coins show heads. Therefore, now sample space is reduced to n of s क्या हुआ है now? At least two coins shows heads. तो at least two heads होना चाहिए. तो two heads means three भी हो सकता है. HHT and HTH and THH. THH, right? Therefore n of s is equal to हुआ है 4. Now आपका इवेंट है 3 heads है. Therefore इवेंट क्या हुआ है? 3 heads. तो कितने हैं? 1. Therefore probability of event is 3 heads and at least 2 coins shows heads. इसका मतलब n of s upon n of e upon n of s which is equal to 1 upon 4. ठीक है? Yes. Now, in the same exercise, question number 18 is of the same. 18 is there? Yes. A family has 2 children. Find the probability that both the children are girls, given that at least one of them is a girl. ठीक है? How many children are there in a family? 2 children are there. Family has 2 children. Therefore sample space क्या हुआ है? 2 children में भी गर्ल हो सकता है या गर्ल बॉय हो सकता है और बॉय गर्ल हो सकता है और बॉय बॉय हो सकता है. And what is given? Given that, no, इधर क्या लिखा है वही लिखेंगे हम. ठीक है? What we have to find? Probability of getting 2 girls given that at least one of them is a girl. Now sample space क्या हो गया है? Sample space is reduced to what are the favorable events now? At least one of them is a girl.
तो 2 गर्ल्स हो सकता है या गर्ल बॉय हो सकता है या बॉय गर्ल हो सकता है। दैट मीन्स सैम्पल स्पेस में कितने हो गया है नाउ इवेंट्स, मीन्स आवर इवेंट के लिए फेवरेबल, राइट। नाउ आवर इवेंट क्या है, द इवेंट इज गेटिंग 2 गर्ल्स, therefore एन ऑफ ई क्या हुआ है 2 गर्ल्स, तो ये की इवेंट है। therefore probability of getting 2 girls if at least one of them is a girl is n of e upon n of s which is equal to 1/3. completed? yes, 2 problems are of the same type। एक बार क्वेश्चंस रीड कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द क्वेश्चन? या इट्स वेरी इजी। 2 cards are drawn one after the other from a pack of 52 cards without replacement. What is the probability that both the cards drawn are face cards? Right? यह सीक्वेंस ऑब्जर्व कीजिए। यू आर नॉट पिकिंग 2 cards at a time, you are picking one after the other and without replacement is the condition, right? 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, one after the other without replacement, right? So what is the sample space n of s for this event? 52 में एक कार्ड आपने चूज़ किया है पहले, राइट, देन रिप्लेस नहीं किया है। नाउ यू हैव 51 कार्ड, तो उसमें और एक को चूज़ करना है। दिस इज योर सैम्पल स्पेस हो गया है। नाउ व्हाट इज़ द इवेंट? लेट ई बी द इवेंट दैट बोथ द कार्ड्स drawn are face cards. So how many face cards are there in a pack? Yes, there are 12. Yes, how many face cards are there? 12 face cards are there, ठीक है। उसमें हमको कितने चूज़ करना है? 2 फेस कार्ड्स चूज़ करना है, वन आफ्टर द अदर। देयरफॉर एन ऑफ ई क्या हुआ है? 12 में एक चूज़ किया है पहले। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट? 12 में एक गया तो 11 है, उसमें आपको एक चूज़ करना है, राइट। देयरफॉर probability of the event is equal to n of e upon n of s, that is favorable cases by sample space. तो 12 C1 into 11 C1 upon 52 C1 into 51 C1. तो simplify it, 12 into 11 upon 52 into 51. तो simplify it, you'll get the answer, ठीक है, right। Now the next question is 16। देखेंगे क्या है इसमें। What is the question number 16? Bag A contains 3 red and 2 white balls and bag B contains 2 red and 5 white balls. इसका मतलब 2 bags are there, एक बैग में रेड कलर का वाइट कलर का बॉक्स आर देयर इन डिफरेंट नंबर। फर्स्ट बैग में टोटल नंबर 3 + 2 5 बॉल्स है और सेकेंड बैग में 2 + 5 7 बॉल्स है, राइट। नाउ a bag is selected at random, okay, a ball is drawn and put into the other bag and then a ball is drawn from that bag. क्या है? A bag is selected at random, a ball is drawn and put into the other bag and then a ball is drawn from that bag. Find the probability that both the balls drawn are of same color. या प्रॉब्लम तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ओके। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द इश्यू। पहले एक बैग को सेलेक्ट किया है रैंडम पे, राइट। नेक्स्ट एक बॉल ड्रॉ किया है, वो जो ड्रॉ किया है वो बॉल दूसरी बैग में डाल दिया है।
फिर से दूसरी बैग में एक बॉल आपने ड्रा किया है. नाउ द बॉल इज ऑफ द सेम कलर विच यू ड्रॉन बिफोर फ्रॉम बैग ए. समझ में आया? यस, समझने की कोशिश कीजिए एंड 2, 3, 4 टाइम्स रिवाइंड करके देखिए अगर समझ में नहीं आया तो. ठीक है, ठीक है. बैग ए इज देयर और बैग बी इज देयर. बिकॉज माई बैकग्राउंड इज वाइट, देयरफॉर आई यूज्ड ब्लैक कलर टू वाइट बॉल्स. ठीक है, तो फर्स्ट बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं. एंड सेकेंड बैग में 2 रेड्स आर देयर एंड 5 वाइट्स आर देयर. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इवेंट्स? ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, राइट. इसका मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं ए और बी, राइट. इसका मतलब दोनों बैग्स हैज़ इक्वल चांस, राइट. देयरफॉर क्या लिखेंगे अभी हम? सो चूजिंग either bag A or bag B in not in have equal chances. That means probability of the bag A or probability of bag B probability of bag 1 और probability of bag 2 चूज़ करने के लिए हाफ ऑफ probability इस तरह. इसका मतलब 2 बैग्स हैं, दोनों को इक्वल चांस है बैग चूज़ करने में, राइट. बी केयरफुल इन दिस प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज थोड़ा मैसी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्या किया है, राइट. ए बैग इज सेलेक्टेड रैंडमली, राइट. व्हाट इज द इशू? ए बैग is selected randomly. Next, a ball is drawn and put into the other bag, right. देन क्या किया है? बैग अगेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द अदर बैग, राइट, ऑफ सेम कलर इज द क्वेश्चन. पहले हमको बैग सेलेक्ट करना है और उसमें से एक बॉल चूज़ करना है. वो बॉल दूसरी बैग में डालना है और उसमें और एक बॉल लेना है. नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व अदर बैग में आपने जो बॉल लिया है वो प्रीवियस बैग में जो बॉल लिया है ना सेम कलर का होना चाहिए. दैट इज़ द इवेंट्स, राइट. हियर 2 colors are there. इसका 2 colors are there and 2 bags are there. Is therefore we will get 4 events, right. So 4 cases arises. So what is the first case? Let A be the event to select bag A and 2 balls are there, right. white ball, पहले red ball लेंगे and red ball and put into bag B and then select रेड बॉल अगेन. रेड बॉल ही लेना है ना, सेम कलर होना चाहिए.
red ball. This is one case, right? Now what is the second case? ये कलर हमने बैग ए से लिया है. नाउ इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है एक बार ऑब्जर्व कीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमने क्या सेलेक्ट किया है, अभी बैग ए सेलेक्ट किया है. तो बैग ए सेलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितने हैं, हाफ ऑफ द चांस. नेक्स्ट फर्स्ट बैग में आपने रेड को चूज़ किया है बॉल को, तो रेड बॉल्स कितने हैं, 3 है और टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 आर देयर. सो 3/5, राइट. नेक्स्ट क्या किया है आपने, एक बार ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, ठीक है. नाउ आपने इधर से जो रेड बॉल लिया है, राइट, मैं सिंपली इधर एक स्मॉल करती हूँ. हाँ, सो इधर से आप एक रेड बॉल चूज़ किया है, राइट. उसका प्रोबेबिलिटी हुआ है 3/5. नाउ यू आर पुटिंग दिस रेड बॉल इनटू बैग बी, राइट. नाउ बैग बी में और एक रेड बॉल आ गया है, राइट. नाउ यू आर चूजिंग ए बॉल फ्रॉम बैग बी बट इट शुड बी ए रेड. नाउ रेड बॉल चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है फ्रॉम बैग बी. नाउ कितने रेड बॉल्स है, 1 2 3 रेड बॉल्स हो गया है. एंड नाउ टोटल कितना हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है. देयरफॉर फ्रॉम बैग बी रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुआ है, 3/8 हुआ है, राइट. वही लिखेंगे इधर. नाउ कितने हो गया है, ये 3/8 हो गया है, ठीक है, करेक्ट. सो ये बैग ए में रेड बॉल और पुट इनटू द बैग बी एंड देन सेलेक्ट रेड हो गया है. नाउ सेकेंड क्या है, सेम फ्रॉम बैग ये और एक कलर इज देयर दैट इज वाइट. वाइट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ब्लैक यूज़ किया है, राइट. सो फ्रॉम बैग ये क्या करेंगे, लेट बी बी द event to select bag A and draw black ball. I mean white ball है but I used black color, that's why because my background is white, right. तो मैं black लेती हूँ, black ball. Then are put into bag B, then draw black ball from it, correct, right. हाँ. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हुआ है, बैग ए के लिए हाफ प्रोबेबिलिटी है. नाउ बैग ए में कितने बॉल्स है, वाइट बॉल्स 2 है ना, 2 है ना, राइट. 2 के लिए कितने वेस में है, 2/5. तो 2/5 2/5. नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट इवेंट इज हैपनिंग. इधर से जो आपने वाइट बॉल को चूज़ किया है, राइट, ऑलरेडी चूज़ किया है ये वाइट बॉल. नाउ वी आर गोइंग टू पुट इनटू द बैग बी. तो हियर और एक वाइट आ गया है, करेक्ट. नाउ यू आर ड्राइंग वाइट बॉल फ्रॉम बैग बी. तो कितने वाइट बॉल्स हैं नाउ हियर, पहले 1 2 3 4 5 आर देयर. नाउ और एक बॉल आ गया है तो 6 बॉल्स हो गया है. एंड टोटल कितने हैं, नाउ रेड इज नॉट देयर, राइट. तो रेड को हम निकाल देंगे, रेड इज नॉट देयर नाउ, दिस इज द डिफरेंट इवेंट. तो कितने हैं नाउ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर देयर. 8 में बॉल्स कितने हैं वाइट का, 6 है. देयरफॉर 6/8, 6/8. समझ में आया, राइट.
लाइक दिस. नाउ फ्रॉम बैग बी लेंगे. ठीक है. हाँ. नाउ फ्रॉम बैग बी. From bag B. The same cases you will get, right? So third one. Let C be the event, right? To select bag B and red ball from it, then put into. नाउ बैग बी लिया है हमने, तो कहाँ पे डालना है बॉल? इनटू बैग ए. देन ड्रा ये रेड बॉल. करेक्ट. अगेन वही सेम कलर का आना चाहिए. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हुआ है? सो हियर आई विल ड्रा वन मोर फिगर सो दैट इट इज़ ईजी. बार बार ऊपर क्यों जाना है, राइट? तो व्हाट इज़ द गिवन इंफॉर्मेशन? आपके पास 2 बैग्स है. नाउ दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. सो कितने रेड्स है? इसमें 3 रेड्स है. 1 2 3 और इसमें 2 रेड्स है, राइट? एंड माई बैकग्राउंड इज़ अ वाइट. सो वाइट के लिए मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, पहले से मैंने बताया है. यह 2 वाइट्स हैं और यह 5 वाइट्स है. 1 2 3 4 5. नाउ आवर इवेंट इज, व्हाट इज़ आवर इवेंट? बैग बी चूज़ करना है, राइट? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी सी, उसके लिए हाफ. और रेड बॉल चूज़ करना है. कितने रेड्स है बैग में? 2 है. और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 2 + 5 7 है. देन वो रेड बॉल कहाँ पे डालना है हमको? यस. सो इधर ऑलरेडी आपने एक रेड बॉल चूज़ किया है, वो रेड बॉल इधर डालना है, राइट? सो नाउ बैग ये में कितने रेड बॉल्स हो गए हैं और टोटल कितने हुआ है? 6. ओके. लेट इट बी, कैंसिलेशन बाद में करेंगे. ठीक है, राइट? Now the next event is yes, black same, but you have to choose white ball, right? So वो भी लिखेंगे. Now fourth one is let D be the event to choose bag B एंड मैंने ब्लैक बॉल लिखा है ना, तो ब्लैक बॉल एंड पुट इनटू बैग ए इन चूज ब्लैक बॉल फ्रॉम इट. करेक्ट. देयरफॉर नाउ क्या हुआ है? नाउ रेड बॉल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो रेड बॉल हम डिलीट कर देंगे. इधर रेड नहीं है, इधर रेड भी कट नहीं है. ठीक है. तो पहले जो है वही है, तो पहले जो है वही करेंगे आप. पहले रेड्स कितने थे? 2 रेड्स थे. और वाइट्स कितने थे? 2. और इधर 5. करेक्ट. नाउ वी आर चूजिंग ब्लैक फ्रॉम बैग बी, राइट? तो पहले व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी? बैग बी चूज़ करने के लिए हाफ है. यू आर चूजिंग वाइट्स फ्रॉम बी, देयरफॉर हाउ मेनी वाइट्स आर देयर? 5 है. और टोटल कितने हैं? 7. नाउ एक वाइट आपने चूज़ किया है एंड यू आर पुटिंग इन बैग ए. नाउ हाउ मेनी वाइट्स आर देयर? 3. और टोटल कितने हो गए हैं? 6. नाउ समझ में आया, राइट? हाँ. नाउ देयरफॉर व्हाट इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी?
This is the question. Therefore, probability of both the balls are of same color is, बैग ए में से आप 2 रेड ले सकते हैं और बैग बी, और फ्रॉम बैग ए वाइट ले सकते हैं, और इफ़ यू चूज बैग बी देन पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी. नाउ write all the values whatever you got, right? So that is first bag के लिए half है, right? So P of A is half into 2 by 5 into 6 by 8. 2 by 5 into 6 by 8 plus what is P of B? Half into 2 by 5 into 6 by 8. ओके इधर मैंने ये गलती किया है. दिस इज पी ऑफ बी. पी ऑफ ए इज हाफ इंटू 3 by 5 इंटू 3 by 8. इंटू 3 by 8 प्लस हाफ इंटू बी इज 2 by 5 इंटू 6 by 8. 2 by 5 into 6 by 8 plus P of C is half into 2 by 7 into 4 by 6. Half into 2 by 7 into 4 by 6 plus, correct only? Next half into 5 by 7 into 3 by 6. Now simplify it. 3 into 3 कितना हुआ है? 9 2 5 10 8 plus 2 5 10 means 80, 2 6 are 12 plus 2 7 14 14 6 84, 2 4 8 plus 5 3 15 upon 84. This is 80, this is 81. ये 9 plus 12, 8 plus 15. So now 9 plus 12 कितने हुआ है? 21 upon 80 plus ये कितने हुआ है? 15 plus 8 23 upon 84. Now find the LCM and simplify it. You will get the answer. ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल्स बढ़ाने का प्रॉब्लम है, राइट? सो इफ़ यू वांट यू जस्ट लिसन द कॉन्सेप्ट वन मोर टाइम एंड देन डू इट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा नहीं लिखने का, डायरेक्ट आप इधर आ सकते हैं. सो कितने केसेस आर अराइजिंग? तो 4 केसेस आर अराइजिंग. आपको बैग ए यूज चूज़ कर सकते हैं और बैग बी चूज़ कर सकते हैं, और सेम कलर का होना चाहिए 2 बॉल्स. तो बैग ए में जो लिया है वो बैग में बी डालना है और बिल फिर से बैग बी से लेना है. तो लाइक दैट 2 केसेस आ रहे. एंड नेक्स्ट सेम बैग बी सेलेक्ट करने से उधर भी 2 कलर्स है ना, तो बी से पिक करना है, ए में ड्रॉप करना है, फिर से ए से ड्रा करना है, सेम कलर, राइट? लाइक दैट 2 + 2 4 केसेस आर अराइजिंग. देयरफॉर इफ इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम डायरेक्ट इधर से आप कर सकते हैं, राइट? सो डायरेक्ट. ठीक है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन. उसमें क्या दिया है देखेंगे एक बार. सो इट्स एन एक्टिविटी. ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 white balls. 2 balls are drawn at random one after the other without replacement. Find the probability that both the balls are white. So it is simple question. Like आपने 52 cards वाला किया है ना, like that one after the other without replacement. तो टोटल कितने बॉल्स है? 3 + 5 8 balls are there. Both are white होना चाहिए बस, राइट? सो व्हाट इज़ द आंसर नाउ? 8 balls में वन आफ्टर अदर ले रहे, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 8 × 7 और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? वाइट चाहिए आपको. तो फर्स्ट 5 में 1 ले लीजिए, 5 हुआ है, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है तो 5 - 1 4 हुआ है.
देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हुआ है 5 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 7, राइट। तो ये एक्टिविटी है, तो यहीं पे कंप्लीट कीजिए वो एक्टिविटी, ठीक है, राइट। तो आज से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ठीक है, वेरी गुड।